چینل کا مقصد جو ہے وہ روحانی علوم کے بارے میں، روحانی علوم بے بنیاد صورتحال نہیں ہے، بلکہ اسے روحانی سائنس کہہ لیں آپ، جو کہ ظاہری طور پہ جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کو محسوس کیا جاتا ہے، یا دانشمند لوگ ہی ان کو جانتے ہیں اس سبجیکٹ کو، ورنہ عام لوگوں کے یہ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے جو ہے اسے خشک مضمون سمجھتے ہیں۔ تو آج میں جو ہے سورت قل هو اللہ احد کی اس کا جو ہے موکل، اس کے اعداد، اس کی ابجد جو ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ سورت جو ہے جب نازل ہوئی ہے تو بڑے اہم موقع کے اوپر نازل ہوئی ہے، اور جو ہے کفار کو اس سورت کے مفہوم سے جو ہے لاجواب کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنا پورا تعارف دیا ہے۔ اس آیت کے 47 الفاظ ہیں، یعنی ابجد کے حساب سے حروف بنتے ہیں وہ 47 ہیں، اور اس آیت کے 47 ابجد کے یعنی جتنے بھی حروف ہیں اس آیت میں اس صورت میں، تو ان کی تعداد جو ہے علم اعداد کے زیر تحت جو ہے 1002 بنتی ہے۔ اب اس تعداد کے مطابق جو ہے علم موکلات کے زیر تحت جو موکل بنتا ہے وہ بنتا ہے اس ذائل بحق یا احد، اس کا ذکر بنتا ہے، یعنی موکل جو ہے وہ اس کو اس ذائل کہیں گے، اور جو ہے مکمل ذکر جو ہے یعنی آپ موکل سے مدد مانگ رہے ہیں بحق اللہ کے، یعنی جیسے آپ کے سامنے جو ہے کوئی بندہ ہو تو اس کو کہیں کہ مجھے اللہ کے نام کے کچھ پر جو ہے نا کچھ دو، اور یہی مفہوم جو ہے اس چلا کشی کا، یا اس میں جو انسان جو ہے اللہ کو جو ہے اللہ سے مدد مانگتا ہے ان کے اسباب سے، اس کے علم کے ذریعے سے، اس کے علم کے باعث سے جو ہے جو مطلب مدد مانگتے ہیں۔ اب آگے بات جو ہے، آپ اگر کسی دعا کی مقبولیت کے لیے ذکر کرنا چاہ رہے ہیں تو 7 دن ایک ہی وقت ایک ہی جگہ جو ہے مخصوص ہو کے جو ہے آپ اول و آخر درود شریف کے ساتھ جو ہے 1002 دفعہ اس ذکر کو کریں گے، یعنی اس ذائل بحق یا احد، تو بالکل جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی دعا کو ضرور سنے گا، اور جو ہے موکل آپ کی جو ہے اس دعا میں جو ہے مقبولیت کرانے میں اور آپ کے معاملات میں جو ہے اللہ کی اجازت سے جو ہے آپ کے کام جو ہے ضرور کرے گا۔ یہ ہے ساری اعتماد اور اعتقاد کی باتیں، ورنہ جو ہے جو نہیں اس صورتحال کو گہرائی کو سمجھتے ان کے لیے تو جو ہے یہ بے بنیاد علم ہے، یا بالکل ہی جو ہے نہ ہونے کے برابر کہہ لیں۔ تو اب جو قوت یقین کے ساتھ، یعنی آپ جب ذکر کر رہے ہیں تو آپ کا یہ تصور ہو کہ میں موکل سے اللہ کی مدد جو ہے وہ مانگ رہا ہوں، اللہ یعنی ذرائع سے، جیسے یہ میں مائک سے بات کر رہا ہوں، اس کے ذریعے سے جو ہے نا بات ریکارڈ ہو رہی ہے، تو یہ بالکل جو ہے اسی طرح ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ڈائریکٹ ہے، مگر آپ بیچ میں جو ہے یعنی موکل کو اللہ کی اجازت سے اپنے کام کے لیے جو ہے مطلب لگا رہے ہیں یا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا جو ہے مفہوم یہ بنتا ہے کہ آپ اللہ کی مدد جو ہے اس کے لیے دنیاوی اسباب جن کی انسان کو اجازت ہے وہ ظاہری ہیں یا روحانی ہیں۔ تو مثال کے طور پہ ایک چیز جو ہے اللہ کی مخلوق آپ کو نظر نہیں آتی، تو آپ اللہ سے ہی دعا کریں گے کہ اے اللہ میرے سامنے جو ہے اپنا کوئی سبب، اپنی کوئی طاقت، اپنی کوئی قوت جو ہے وہ میرے لیے مقرر کر دے تاکہ میرے لیے آسانی ہو۔ اب اسی ذکر کے زیر تحت جو کہ سورت قل هو اللہ احد، اس کے زیر تحت جو ہے ساری آیات کے جس طرح میں نے بتایا ہے کہ مکمل اعداد جو ہے ان کے جو ہے 1200 بنتے ہیں، یعنی 10 تسبیحاں اور 2 دانے۔ تو جو باقاعدہ طور پہ جو ہے اس موکل کو تابع کرنا چاہ رہا ہے، یعنی اپنی روحانی آنکھ سے اپنے سامنے جو ہے اس کی جی حضوری دیکھنا چاہ رہا ہے اور بالکل تابع کرنا چاہ رہا ہے کہ آپ کی کنٹرول میں آ جائے، تو پھر جلالی اور جمالی پرہیز کے ساتھ جو ہے آپ بالکل دنیا داری سے کٹ کے، یا تو بہت کہیں دور آبادی سے جو ہے کوئی کمرہ ہو، یا جیسے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ایک غار میں جا کے جو ہے غار حرا میں جا کے جو ہے اللہ کا ذکر پکارتے تھے، اور ان کے سامنے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے اس کوشش کے سامنے وہی لے کے آئے۔ تو ٹو سیم جو ہے سنت امت کے لیے جو ہے وہ اب جو ہے ملائکہ تو جو ہے اپنے سامنے حاضر نہیں کر سکتے، مگر یہ ہے کہ موکلات جو کہ اس کے نیچے اس کے
मतलब अल्फाज के जो असरात पैदा होते हैं रूहानी, उनकी एक जो है आप ये एक तरह यही समझ कि ये रूहानी साइंस है ना, तो अल्फाज अदाद इनके ज़ेरे तहत जो है आप एक जो है नुस्खा बना रहे हैं, उस नुस्खा के ज़ेरे तहत एक मशीनरी बनेगी और उस मशीनरी से आप काम लेंगे। तो सेम इसी तरह ही जो है आप जो है अल्फाज जो कि तलफ़्फ़ुज़ आपके गलत नहीं होने चाहिए, यानी आप जब जिक्र कर रहे हो, जैसे मैं ये जिक्र कर रहा हूँ कि अस्ज़ाइल बहक या अहद, यानी ये तलफ़्फ़ुज़ जो है आपके गलत नहीं होने चाहिए, यानी तलफ़्फ़ुज़ के जो है आवाज़ अगर चेंज हो गई है, तलफ़्फ़ुज़ बदल गए हैं, तो अदाद भी और उसका मफ़हूम भी जो है बदल जाएगा। अगर आप इस जिक्र के दरमियान आपका ध्यान अपने इस मकसद से हट के, यानी आप जिक्र तो कर रहे हैं मगर आपका ख्याल कहीं और सैरे कर रहा है, कभी कहीं निकल जाए ख्याल, कभी कहीं निकल जाए ख्याल, तो फिर भी जो है जिक्र का कोई असर नहीं है। अक्सर लोग जो है वो मतलब जिक्र करते हैं तो शिकवा करते हैं जी इसमें कोई असर नहीं पैदा हो रहा, इसमें कोई बज़ाहिर सूरत जो है नजर नहीं आ रही, कोई कामयाबी नहीं हो रही। तो उसकी वजह जो है यही होती है कि या तो बंदा तलफ़्फ़ुज़ गलत कर बैठता है, या आदात पूरे शुमार नहीं करता उसमें, या ये है कि वो अपने तसव्वुर को, अपने इरादे को जो है कायम नहीं कर पाता। जो लोग जो है अपने तसव्वुर, अपने इरादे को कायम करके सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ जो है मुकम्मल तन्हाई और जलाली और जमाली परहेज के साथ जो है बैठता है 41 दिन के लिए, और इस जिक्र को जो है अपने एक मुकर्रर टाइम में पूरा करता है, तो जरूर अल्लाह ताला उसको कामयाबी देता है, और वो उसके लिए एक ऐसा औजार रूहानी बन जाएगा कि जैसे आपने कोई जो है कोई मुलाजिम अपने लिए रख लिया और उसको हर काम आप कह सकते हैं, यानी जो ताबे होते वक्त जो है उससे आपका एग्रीमेंट होगा। ये भी बड़ी एक अहम बात है कि मुवक्किल जो है वो आपको दुनिया की किसी एक चीज से मना करेगा, तो आप जो है सोच समझ के जो है ये वायदा करें, अगर वो कोई एक चीज बताए तो उसको बोलना कि कोई और एक बताओ, कोई और एक बताओ, यानी 3 दफा आपको जो है ये इख्तियार होगा कि उससे जो है कोई ऐसी सूरत हाल जो है शरायत बांधनी है जो कि उसके ऊपर पाबंद रहना आपके लिए भी आसान हो। यानी ये ना हो कि रोजमर्रा के इस्तेमाल में से आप किसी चीज की पाबंदी के ऊपर एग्री हो जाएं तो आप कहीं ना कहीं जरूर गलती कर बैठेंगे और आपको आपका मुवक्किल ही नुकसान देगा। आपको 3 दफा जो है कहीं कोई और बताओ, कोई और बताओ, तो फिर जो है आपको जो आसान लगे कि मैं ये जिंदगी में कभी जो है इस्तेमाल नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे कोई एक फल, जैसे अनानास फल है, हर आदमी हर रोज, मैं कहता हूं मैंने आज तक जिंदगी में ना उसे देखा है ना खाया है, ठीक है दुकानों के ऊपर सजा हुआ वो नजर तो आता है मगर हाथ में पकड़ के खा के नहीं देखा। तो ऐसी सूरत ऐसी शर्त तो आप बांध सकते हैं कि ठीक है जी मैं सारी जिंदगी अनानास नहीं खाऊंगा, यानी ये एक मिसाल दे रहा हूं मैं। तो उसको आप जो है ये कह सकते हैं कि कुरान और शरीयत के मुताबिक तमाम दुनिया के काम जो जायज है वो तो आपने मेरा हुक्म मानना है, और इसमें बिल्कुल ख्याल रहे कि आप यानी 41 दिन के खाने पीने के हवाले से खुश, यानी जैसे चने हो गए या और ऐसी अजनास जो है वो मतलब बिस्कुट वगैरह हो गए और पानी वगैरह हो गया, तो या फिर ऐसा है कि साफ सुथरा जो है कोई आप खिदमतगार बार मुकर्रर कर सकते हैं कि जो आपको जो है उससे पहले आपने उसको समझाया हो कि मुझे जो है हर दिन ये चीजें जो है खामोशी से मुझे पकड़ा देनी है और मुझसे बात नहीं करनी, आपने बात भी 41 दिन किसी से नहीं करनी, और जो है जलाली और जमाली परहेज का मकसद ये है कि आपने गोश्त नहीं खाना, आपने रोगनी चीजें नहीं खानी, आपने दूध नहीं पीना, यानी ये जलाली और जमाली परहेज इसे कहते हैं। अंडा नहीं खाना, यानी आपने सिर्फ या तो खुशक रोटी पानी के साथ खानी है, या फिर ये है कि चने या ऐसा ही अजरास भुने हुए जो है वो खाने हैं। तो बहरहाल जो है ये रूहानी साइंस के असूल है, ये बेबुनियाद सिलसिला नहीं है। जो इस लाइन को जानते हैं वो इसकी अहमियत को भी जानते हैं। अगर आपने अपनी किसी मौजूदा मसले के हल के लिए आर्जी तौर पे इसका जिक्र करना है, यानी मुवक्किल ताबे करने का इरादा नहीं है, सिर्फ दुआ की कबूलियत करवाने का कि मुवक्किल भी आपके साथ आपकी मदद करे, तो फिर उसके लिए जो है आप 7 दिन जो है एक ही वक्त में एक ही जगह के ऊपर जो है, यानी आपने मुकर्रर करना है कि फजर के बाद मैंने पढ़ना है, या मुकर्रर करना है कि फजर इशा के बाद पढ़ना है, यानी एक टाइम मुकर्रर कर लें और तादाद पूरी करें, यानी 10 तस्बीहां और 2 दाने, यानी कुल हो अल्लाहु अहद का जो सूरत का मुवक्किल है वो इस ज़ाहिल बनता है। यानी मिसाल के तौर पे इसका तरीकाकार यही है कि आप 1002 में से 41 जो है तफरीक करेंगे तो बाकी 900
61 बचेंगे। अब जो है इसका जो 900 का आदद 900 का जोए बनता है, यानी जाहिर वाला जोए बनता है, वो लेंगे। अब आ जाए 60 के ऊपर 60 का आदद जो है सीन बनता है। अब 1 पे आ जाए तो 61 का आखिरी एक जो है उसका अलग बनता है। यानी अब इसको जो है आप तरतीब देंगे कि दाएं से पहले जोए लगाएंगे, 900 का जोए लगाएंगे, 60 का सीन लगाएंगे, एक का अलम लगाएंगे। तो आप सीधी तरफ से उसको पढ़ेंगे तो वो बनेगा इस जा। आगे जो 41 आपने जो तफरीक की हैं वो एल के हैं, यानी इस जाइल मुकम्मल जो है ये सारे अल्फाज क्या बन गए 1002। और इसका विर्द भी फिर जो है इसी तरह किया जाता है कि जब विर्द मुकम्मल इसका करना हो तो आपने इस जाइल बहक या अहद को 1002 दफा जो है पुकारना है। यानी आपने 10 तस्बीहां और 2 दाने पढ़ने हैं। उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आपने जो भी आपका मकसद है आपने वो दुआ मांगनी है, और वही एक दुआ मांगनी है। ये नहीं होगा हर रोज आप जो है अपने मकसद को अपनी दुआ को बदलते रहें। यानी 7 दिन आपने नियत करनी है कि मैंने कौन से मकसद के लिए जो है इसका जिक्र करना है, तो फिर 7 दिन जो है वही जिक्र मकसद के मुताबिक, मकसद को ज़हन में रखते हुए वो जिक्र करना है आपने उसी एक टाइम के मुताबिक। तो बहरहाल जो है ये रूहानी साइंस का सब्जेक्ट तो बहुत गहरा है, आया जो है आम लोगों की समझ में आता है नहीं आता है, पर मैंने जो है आसान लफ्जों में आसान तरीकाकार के ज़रिए तहत जो है आपके सामने बयान किया है। अगर फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट में जो है आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं बिल्कुल बताऊंगा। आया आपने किसी मकसद के लिए जिक्र करना है या आपने मुअक्कल को अपने ताबे करने के लिए जो है जिक्र करना है, तो इसके तरीके अलग अलग हैं। तो आप जो है आपकी समझ में अगर मेरी ये सारी सूरत वीडियो में मैंने तो बड़े आसान लफ्जों में बता दिया है, अगर फिर भी आपके ज़हन में सवाल पैदा होता है तो आप बिल्कुल जरूर जो है कमेंट में मुझे सवाल करें, मैं आपको जवाब दूंगा।